First John chapter 5 verses 13 to 21. और पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसका 13 से 21 तक। Yeah. So verse 13 says, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life." और उसका 13 वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। Yeah. So to all those who believe in the name of the Son of God, he's saying that I've written these things so that you will know that you have eternal life. तो वचन ऐसे कहता है, जो लोग परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते ये वो जान सके कि ये अनंत जीवन तुम्हारा है। So, uh, so what is eternal life? That we may know that we are having eternal life. Those who believe in the name of the Son of God has eternal life. So all of us who believe in the name of the Son of God has eternal life. तो अनंत जीवन क्या है? हम जानते हैं, जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। So as you have heard before, that eternal life is not a length of time, but it is a quality of life. और इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कितना बड़ा जिंदगी जिया, लेकिन जितना भी जिया, लेकिन उसका किस तरह से हमने जिया वो महत्वपूर्ण रखता है। The explanation is clearly written in John chapter 17, verse 3. और यूहन्ना अध्याय 17 के 3 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। John 17:3 says, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." यूहन्ना अध्याय 17:3, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। So, when we know Jesus Christ, when we know the true and living God, then the Bible says we have eternal life. और ये वचन कहता है, जब हम यीशु को जानेंगे और एक सच्चे मात्र पिता परमेश्वर को जानेंगे तब हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। Because when we know Jesus Christ, when we know the living God, our life will not remain the same. क्योंकि जब हम यीशु मसीह को और जीवंत परमेश्वर को जब हम जानेंगे तो हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। So it keeps on transforming and into the nature of Christ, which is eternal life. और वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता जाएगा और यीशु मसीह के जैसा हमें बनाएगा। So now the Apostle John has written this letter of John, John 1, John 2, John 3. और ये प्रेरित यूहन्ना ने पहला यूहन्ना, दूसरा और तीसरा यूहन्ना लिखा है। He has also written the Gospel of John. और उसने सुसमाचार जो यूहन्ना का है वो भी लिखा है। So that was his first letter. और वो उसकी सबसे पहली पत्री थी। So there he writes he writes that letter with a different uh, outlook. और जो उसने पहली पत्री लिखी थी उसका जिस तरह से उसने लिखा था वो अलग रीति से उसने लिखा था। So that we find in John chapter 20, verse 31. यूहन्ना अध्याय 20 उसका 31 वचन हम देखते हैं। John chapter 20, verse 31 says, "But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and believing you will have life in his name." और यूहन्ना अध्याय 20 का 31 वचन कहता है, परंतु ये इसीलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। So the first time he's writing this gospel of John, he's writing about Jesus and everything about Jesus, and with the intention that people may believe in Jesus, और जब वो पहली पत्री लिख रहा था तब वो इस उद्देश्य से लिख रहा था कि लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें that he is a son of God, कि वो परमेश्वर का पुत्र है। and when they believe in Jesus, then they will have eternal life. और जब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो अनंत जीवन को पाएंगे। So that was the purpose of writing the first letter, तो उसका पहला पत्री जो लिखा उसका उद्देश्य यही था। rather the first gospel. और पहला जो सुसमाचार है। Now, when he's writing this letter, he's having another purpose in writing this. लेकिन अब जो दूसरे जो पहला यूहन्ना में लिखा है उसका दूसरा उद्देश्य है। He's writing that.
I am writing these things who believe in the name of the Son, that you may know that you have eternal life. और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं तुम यीशु परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। So all of us who believe in Jesus Christ must know that we have eternal life. और जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो जानना चाहिए कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। So it is not dependent on our feelings, whether we feel that we have got eternal life or something like that. It's not that. It is because we believe in Jesus, we have got a life from God, which is eternal life. और ये हमारे भावनाओं के ऊपर नहीं है कि हम हमारे भावनाओं के ऊपर विश्वास करें, लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास जताते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र है, तब हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। So this is a great gift that God has given us. Eternal life is a gift of God for us. तो ये अद्भुत एक परमेश्वर का भेंट और उपहार जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए है। Now we will read verses 14 and 15. और अब हम 14 और 15 वचन पढ़ते हैं। So this verse is a tremendous verse if we can use it in our life. It's a great blessing. This verse 14 and 15. और ये 14 और 15 एक अद्भुत वचन है, अगर हमने उसको अपने जीवन में लागू किए तो ये बहुत ही आशीष का कारण होगा। So verse 14 says, "This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." और 14 वचन कहता है, और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। The apostle says that this is a confidence that we have, that if we ask anything according to His will, God hears us. प्रेरित यूहन्ना ये कहता है कि उसके विश्वास है और हियाव है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो हमारी सुनता है। So many people are praying to God all over the world, both believers, unbelievers, um, even atheists may be praying uh, in their need. Many people are praying to God, but how many of it God hears? तो कितने ही लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ विश्वासी, कुछ अविश्वासी, और कुछ परमेश्वर पर नहीं विश्वास करने वाले लोग, लेकिन कितनों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। See, God is good, and He hears the unrighteous and the righteous. He gives rain for the people who are good and evil. That is all out of His goodness. और हम जानते कि परमेश्वर भला है, वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेह बरसाते हैं और अपनी भलाई दोनों के ऊपर प्रकट करते हैं, क्योंकि वो भले परमेश्वर हैं। But now here He's specifically talking about, if anybody prays according to God's will, God hears it. लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप में वो लिखता है, वो कहता है कि यदि कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है तो वह उसकी सुनता है। So now we have to know what is prayer according to God's will. तो अब हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना क्या है। Suppose we pray, Lord, help my child to get first class and get a seat in the engineering college. अगर हम ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे बच्चे को अच्छे क्रमांक से उत्तीर्ण कर और पहला आकर वो उसको अच्छा एक सीट मिल जाए In IIT, आईआईटी में। IIT में, I just want to get a this. So we are praying to God. तो हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। Okay, so that is one prayer. तो वो एक तरह का प्रार्थना है। Maybe we are praying now. We are staying in a one-bedroom house, and now we are praying to God, Lord, that we want to have a two-bedroom house. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि उस वो 1 BHK में रहता है और वो चाहता है कि वो 2 BHK में रहे, तो वो प्रार्थना करता है परमेश्वर के सम्मुख। And another person is praying that he wants to go to America, एक और व्यक्ति प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे अमेरिका में जाना है। and so on and so forth. We can say so many different requests we all make. और ऐसे बहुत सारे हैं, और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे निवेदन हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। Now, all these prayers, uh, when we say according to verse 14, uh, if we try to really bring it down to verse 14, if anybody prays according
to God's will, God hears it. So, can we say any of these prayers? Just for example, uh, is it? Can we be confident that God has heard it? तो यहाँ जैसे वचन में लिखा हमें हियाव है, जो हम उसकी इच्छा से मांगते तो मिलता है। तो क्या हमको लगता है ये जितने भी बातें हमने अभी कही है प्रार्थनाएं के विषय में जो लोगों ने की है, तो आपको क्या लगता है कि ये हियाव रखता है और वो प्रार्थना करते कि जो उन्होंने मांगा उसे प्राप्त किया है? Because this verse 14 says, if it is according to God's will, then God hears it. क्योंकि वचन ऐसे कहता है कि अगर वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है तो वो उन लोगों को प्राप्त होगा। So none of us can be sure that all these prayers, which, for example, I've made, is is none of these prayers are. We can be confident that it is God's will. None of us can be confident. तो हम में से कोई भी ये सारे प्रार्थना जो हमने अभी कही है, हम में से कोई भी हियाव के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। It can be or it cannot be God's will. ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है परमेश्वर की इच्छा। It comes in that category. वो ऐसे एक क्षेत्र में आता है। Okay. So now I'm making another prayer. लेकिन अब मैं एक और प्रार्थना करता हूं। See, I have got a tendency to speak evil about others and to tell about the mistakes and to tell about something not good about others. Keep on telling maybe my husband, my wife, maybe my brothers and sisters, my neighbors. I feel like talking like that. सोचो मेरे अंदर ऐसा स्वभाव है कि मैं हर एक भाई बहन के बारे में बुरा कहता हूँ और हमेशा उनकी बुरा ही बोलता हूँ। सोचो मेरी वाइफ या मेरे पति या कोई भी भाई बहन कलिसिया के, हम उसकी बुराई करते रहते हैं। Another area is that I'm always not forgiving people. I'm bitter about people for what people have done in the past, and and I'm always carrying all this unforgiveness in my heart. और दूसरा एक क्षेत्र हो सकता है कि दूसरे लोगों को मैं कभी क्षमा नहीं करता और उनके प्रति अपने मन में कड़वाहट रखता हूँ और उनके प्रति कभी भी मुझे क्षमा करने या दया करने की भावना नहीं पैदा होती है। And then another one is that I always tend to think that I'm better than others, or I always think I'm quite proud. I'm very arrogant. Like I look at others down, and think of myself as superior. और एक और बात हो सकती है कि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं, दूसरों को कम समझते हैं और सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए और मेरे ही साथ मेरे ही सब आज्ञाकारी होने चाहिए। ऐसे मेरा एक स्वभाव अगर मेरे अंदर है। And I love Jesus, and I realize that these things are not these things are not to be in my life, and I want to change. और मैंने इस बात को सोचा कि ये परमेश्वर के इच्छानुसार नहीं है और मुझे बदलने की जरूरत है। I want so I'm praying now to God, Lord, I want to stop speaking evil of others and I want only to speak good things. और मैं आपसे ये भी प्रार्थना परमेश्वर के समक्ष करने लगा, प्रभु मेरे को आपसे किसी के बारे में बुरा नहीं करना है, मुझे सबके भलाई के विषय में सोचना है। And now I'm also praying about the need for forgiving others. I don't want to hold on just because as God has forgiven me. I want to forgive everyone, not a single one. I want to keep unforgiveness. और मैं दूसरे क्षेत्र के ऊपर भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपसे सबको क्षमा करना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझे क्षमा किया है वैसे ही मैं सबको क्षमा करना चाहता हूँ। एक के ऊपर भी मैं अनफॉरगिविंग या माफ नहीं करने वाला हृदय नहीं रखना चाहता। Then I sense that that this pride is such a bad thing. It's not the nature of Jesus. I want to become humble like Jesus. So I pray to God, Lord, help me to be humble and help me not to look down on anybody. और तीसरा क्षेत्र के ऊपर भी मैंने कहा, प्रभु ये घमंड करना अच्छी बात नहीं है, वो आपकी ओर से नहीं है, मुझे आपके जैसा नम्र बनना है और किसी भाई को नीचा नहीं देखना है। So now these prayers, when I take it to God and I look at verse 14, it says, "This is a confidence which we have before Him that if we ask anything according to His will, He hears us." और अब ये तीन निवेदन हम जब परमेश्वर के सम्मुख ले जाते हैं और 14 वचन जैसे कहता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। Then I realized that whatever these three things that I've prayed, I have that confidence that that it is what is God's will because it is God's nature that I'm desiring.
I realize that these three prayers which I'm praying is in line with verse 14 of the Bible, that if that I can have confidence that if I pray according to God's will, He hears my prayer. अब ये निवेदन जब मैं परमेश्वर के सम्मुख ले जाता हूं तो मुझे हियाव है कि जो कुछ भी मैंने परमेश्वर के सामने अभी प्रार्थना की है, इस वचन के आधार पर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। So now it is not a question of it may be or may not be. It is God's will that that I speak good things. It is God's will that I forgive others. It is God's will that I humble myself. So it is according to God's will. ओके, सो अब इस निवेदन को जब हम परमेश्वर के सामने ले जाते हैं तो हमारे हृदय में कोई भी शक नहीं है कि ये निवेदन, जैसे हमने प्रार्थना की, प्रभु मुझे घमंड से बचा, दूसरों को नीचा देखने से बचा और अनफॉरगिविंग हार्ट से मुझे बचा प्रभु, जब हम ये प्रार्थना परमेश्वर के सामने ले जाते हैं हमें हियाव है कि प्रभु ने सुना। So, brothers and sisters, this is the way that we can pray to God for our problems, our sins. सो प्रिय भाइयों बहनों, इस रीति से हमें परमेश्वर के सम्मुख अपनी निवेदन रखना चाहिए, हमारे पापों को जो हम परमेश्वर के सामने ले जाकर विनती करनी है। So God hears this prayer of us. तो इस रीति का प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनता है। So whenever we pray to God any of these problems of ours, God hears it. तो इस रीति से कुछ भी जब भी हमारी समस्या प्रॉब्लम पाप के रीति से होगी, हम जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं प्रभु हमारी सुनता है। And then let us look at verse 15. अब हम 15 वचन देखते हैं। And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। So this is the addition to this verse that God who has heard our prayer now has answered our prayer also. तो ये वो पहले जो 14 वचन पढ़ा है उससे ही जुड़ा हुआ है कि जो कुछ भी हमने मांगा है उसको पा भी लिया है। So we must receive it by faith. लेकिन हमें विश्वास से उसे ग्रहण करना है। Now the actual working of that may take some time. लेकिन उसको अपने जीवन में होने के लिए कुछ समय लग सकता है। The change in us, the change of not speaking evil or not being proud or not forgiving, it may take some time. लेकिन जो हमने बदलाव की बात की है, जैसे क्षमा नहीं करना, दूसरों को नीचा देखना या दूसरे को घमंड से जब हम भरते हैं उस विषय के ऊपर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो समय ले सकता है। But God has answered our prayer. लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना है। And we will find grace in our lives, and we will find that area is changing in our life. और हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमने प्राप्त किया और हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। I am saying this, brothers and sisters, because I experience it every time in my life. Any problem is there, then I use this verse only. और भाइयों बहनों, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है, देखा है ये बात को अपने जीवन में सच होते हुए। जब कभी मैं ऐसी प्रलोभन में पड़ता हूं, ये वचन को मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं। Whether it is speaking hurtfully to others, whether it is jealousy, whether it is any sin, whether it is addiction of any sort, anything, God will change our life. चाहे वो किसी का बुराई करना हो या घमंड करना हो या किसी तरह का अगर अभिलाषा हमारे अंदर है, उससे परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। So I want to encourage all brothers and sisters that this verse 14 and 15 we must by heart it, and we must always use it. तो सारे भाइयों और बहनों से मैं अनुरोध करता हूं, प्रोत्साहन करता हूं कि ये जो 14 और 15 वचन है आप लोग इसको भायाट करें और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल भी करें। Okay, now let's verse 16 says, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give for him life to those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death. I do not say that you should make requests for this. अब 16 वचन कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसे भी होते हैं जिनका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। So, brothers and sisters, when we see
any of us, maybe our family members, maybe our children, maybe our brothers and sisters in the church, or anyone falling into any particular sin, let us not criticize them, or but pray for them that they will be able to overcome. तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी हम अपने भाइयों को या बहनों को या अपने परिवार के कोई सदस्य को कहीं ठोकर खाते हुए देखें, तो उनको हम नीचा ना दिखे, पर लेकिन उनके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। Because it says in First John chapter 2 verse 1, क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 1 में ऐसा कहता है, it says, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." 2 उसका 1 वचन, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। So we can receive forgiveness because Jesus is our advocate. तो हमें क्षमा प्राप्त होगा क्योंकि यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है So या बचाव पक्ष। we must pray for one another so that they will be able to overcome that particular sin. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है ताकि वो उसके ऊपर जय पाए। Okay, but there is a sin which leads to death, and that could be the sin against the Holy Spirit. लेकिन एक ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है। ये पाप हो सकता है पवित्र आत्मा के विषय में। We'll read Matthew chapter 12. मत्ती अध्याय 12 में हम एक वचन देखते हैं। Says verse 31. उसका 31 वचन, Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। Now, this particular sin against the Holy Spirit is some sin which is, which when you harden, when a person hardens the heart and willfully goes against God, knowing, like the Pharisees, they knew that Jesus was good and a good man and doing all good things, but they still said that he is doing it by the power of the devil. तो हो सकता है पवित्र आत्मा जब के विषय में, जब हम कहते हैं हमारा हृदय कठोर होने के विषय में, हम परमेश्वर की आवाज सुन के भी अपना हृदय कठोर करते, जिस तरह से फरीसी कहते, उनको पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है, फिर भी वो कहते कि ये शैतान की ओर से, इसके अंदर शैतान का आत्मा है। So this sort of sin is very rare, and so suppose we feel that, oh, I have committed a sin against the Holy Spirit, and we feel very bad about it, then we have not committed that sin. अगर सोचो कि हमको लग रहा है कि हमने पवित्र आत्मा के विषय में कुछ पाप जरूर किया है और हमें उसकी बुरा लग रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो हमें परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। Then we have not committed the sin against the Holy Spirit because we are feeling sorry for it. क्योंकि तब हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं किया, क्योंकि हमें उसका पश्चाताप है। So 17 says, all unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death. और 17 वचन कहता है सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसे पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। Yeah. So every sin is unrighteousness, and um, there is a sin not leading to death means you can receive forgiveness by repentance. Then it is a sin not leading to death. और सब प्रकार का अधर्म तो पाप है जैसे यहाँ कहा गया है, लेकिन ऐसा पाप मतलब जो जिससे हम पाप से मन फिराते हैं, वो पाप हम उसका फल मृत्यु नहीं है। Verse 18 says, "We know that no one who is born of God sins, but he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him." और 18 वचन कहता है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है कि वह दुष्ट उसे छू न पाए। So this is the quality of a born again Christian, और जो नया जन्म पाया हुआ उस व्यक्ति का ये जीवन है, and this should be our experience. और ये हम सबका अनुभव होना चाहिए। We know that no one who is born of God sins or practices sin. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता या पाप को हर दिन करने का प्रयत्न नहीं करता। Practices sin means practices lying, practices talking evil about people.
practices bitterness and anger. Uh, so all these or sexual falling into sexual sins, practicing it. No one who is born of God does that. तो प्रयत्न करने का अर्थ ये होता है कि जब हम बार बार झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, घमंड करते हैं, या शारीरिक अभिलाषाओं में फंसते हैं, इस रीति से जो परमेश्वर से जन्मा है नहीं करता। By the way, let me tell at this time that not even a single lie we ought to speak as a Christian. लेकिन इस समय में आप लोग से कहना चाहता हूं, जैसे मसीह होने के तौर पर हम एक भी झूठ नहीं बोलना है। That is one mark of a Christian, that he does not lies, does not speak lies. और ये एक चिन्ह है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है कि वो एक बार भी झूठ नहीं बोलना चाहता, Because the spirit of truth lives in him. क्योंकि उसके भीतर सच्चाई की आत्मा रहती है। Okay, this is one area we have to be very sure of in our lives, that lying is not a part of a Christian's life. और ये एक बात के ऊपर हमें हमेशा हिया होना चाहिए कि झूठ बोलना ये मसीह के जीवन का आधार नहीं है। Always we desire to be speak the truth, हमेशा हमारे अंदर यही लालसा होनी चाहिए कि हम सत्य को बोले, whatever the cost, whatever cost we have to pay. उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। That is the Christian life. यही एक मसीह जीवन है। Okay, so he who is born of God keeps him. That means Jesus, who is born of God, keeps us. तो यहाँ वचन कहता है जो उससे उत्पन्न परमेश्वर से बचा है, मतलब यीशु मसीह उसको बचाता है, And we keep ourselves. और हम अपने आप को बचाते हैं। See, God is the one who keeps us, देखो यहाँ लिखा है परमेश्वर है जो हमें बचाता है, and we keep ourselves from sin. और लेकिन हम अपने आप को उस पाप से बचाते हैं। It is not that, just that only God will keep us from sin and we are careless. No. और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर ही हमें पाप से बचाएगा और हम कैसे भी जी सकते हैं। The Bible says, flee youthful lusts. और बाइबल कैसे कहते हैं, बाइबल का वचन कहता है कि शारीरिक अभिलाषाओं से, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। So if we don't flee youthful lusts, then how can God keep us? तो अगर हम उस शारीरिक अभिलाषाओं से नहीं भागेंगे तो कैसे बचेंगे? God will keep us, but we have to keep ourselves. As much as God has given us the grace, we have to keep ourselves. परमेश्वर हमें बचाएगा, लेकिन जितना परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह के खातिर हमको पाप से बचना है। So we'll read Jude verse 24. और यहूदा की पत्री 1 का उसका 24 पढ़ते हैं हम। Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in his presence of his glory blameless with great joy. यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसका 24 वचन कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। So this is a wonderful promise that God is able to keep us even from falling. यहाँ एक अद्भुत वचन लिखा है कि यीशु मसीह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, Yeah, and to make us stand before him blameless with great joy. और हमें उसके सम्मुख निर्दोष कर कर खड़ा कर सकता है। And then verse 21 says, और 21 वचन कहता है, keep yourselves in the love of God. हे बाल को अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। So both ways. One is God is keeping us from stumbling, and we have to keep ourselves in the love of God. ये दो तरफ का है, एक तरफ से परमेश्वर हमें बचा रहा है और दूसरी तरफ हमें भी उस पाप से बचे रहना है। Verse 19 of 1 John 5:19 says, we know that we are of God, and the whole world lies in the power of the evil one. और 19 वचन हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 5 का 19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। So though we are children of God, this world is still ruled, the ruler of this world is still the devil. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के ओर से है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बाकी सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। So all the temptations which the devil puts on us, we have to be very careful. तो जितनी भी अभिलाष या प्रलोभन शैतान हमारे अंदर डालता है, उससे हमें बचे रहना है।
But God has given us the grace to overcome, not to fall into this temptation. Greater is He who is in us than he who is in the world. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम पाप में न गिरे, लेकिन बाइबल का वचन कहता है धन्य नहीं, वचन कहता है जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। So though the ruler of the world is in power, but we have got somebody greater than that ruler, and so we can be overcomers. तो यहाँ वचन जैसे लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के जाल में पड़ा है, वो सामर्थी हो सकता है, लेकिन जो हमारे भीतर है वो उससे भी ज्यादा सामर्थी है जो हमारे भीतर रहता है। Verse 20 says, "And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life." और 20 वचन कहता है हम यह जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उससे सच्चे उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। So we know we know the Son of God, and we are in Him. We have the eternal life within us. तो यहाँ वचन कहता है हम जानते हैं परमेश्वर कौन है और उसने हमें बुद्धि दिया है कि हम उसे पहचान सके और अनंत जीवन हमारा है। Verse 21 says, "Little children, guard yourselves from idols." और 21 वचन कहता है बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। So this is something that we have to take all through our life um, to guard ourselves from any idol in our life. और ये बातें हमको पूर्ण अपने जीवनों में जांचना है कि किसी तरह का मूर्ति हमारे जीवनों में नहीं होना चाहिए। So now we may not follow physical idols, और हो सकता है कि हम खरी मूर्तियों को अब पीछा नहीं कर रहे हैं, but idols can be anything which is very valuable to us. लेकिन मूर्ति हो सकती है कोई भी चीज जो हमारे लिए बहुत मूल्य रखती है। Okay, uh, something which is valuable and it tries to take the place of Jesus. जो चीज मूल्य है और वो यीशु मसीह का स्थान लेना चाहती है। So it can be any material thing, it can be some clothes, it can be some objects, it can be some ambition, it can be some person, something attracts us more than Jesus, that becomes an idol. तो वो कुछ भी हो सकता है, हमारा सामान हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, या कोई भी चीज जो यीशु मसीह का स्थान को लेता है वो हमारे लिए मूर्ति बन जाती है। So, how to be guard ourselves daily from idols? तो हम कैसे अपने आप को इस तरह की मूर्तियों से बचा सकते हैं? Every day, go before God and say, "Lord, I just put everything on the altar, and you are above everybody. If there is anything which is attracting me uh, more than you, I want to place it on the altar." हर दिन हमें परमेश्वर के सामने और उसके वेदी पर जाना है और उससे कहना है प्रभु जो कुछ को मैं ज्यादा महत्व देता हूं उसे आपके वेदी के सामने रखता हूं, और सब बातों में प्रथम स्थान और सबसे ऊंचा दर्जा मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूं। So when we do that, brothers and sisters, and then when we ask God, "Lord, is there anything else, anything still left that I am holding on to?" And when God says, "No, there's nothing," then we are people who are free. और जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर और ऐसी इस रीति से वेदी पर हर बातों को चढ़ाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु अब कुछ बचा है मुझे वेदी पे चढ़ाना, तब परमेश्वर कहता है नहीं, तब हम ऐसे लोग होंगे जो पूरी रीति से आजाद है। Then we can say, as it says in John 17:10, और तब हम यूहन्ना अध्याय 17 उसके 10 में जैसे लिखा है हम भी कह सकेंगे। John 17:10 says, "And all things that are mine are yours, and yours are mine, and I have और been glorified in them." और जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इसमें मेरी महिमा प्रकट हुई। So, brothers and sisters, we can say, "Lord, all things that are mine are thine." तो प्रिय भाइयों बहनों क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर मेरा है वो सब तेरा है? And then we can say, "Lord, all things that are yours are mine." तब हम कह पाएंगे कि पिता जो कुछ भी तेरा है वह मेरा है। Yeah, so we finished now chapter 5, and next time we'll go to chapter
second John. तो आज हमने इस पहला अध्याय यूहन्ना का खत्म कर दिया 5 तक। अब हम अगले हफ्ते में दूसरा यूहन्ना में जाएंगे। God will give us grace to be faithful in the word that we have heard. और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा कि हम विश्वास योग्य रहे जो कुछ भी बातें आज हमने सुनी है।